Okay. Again, it started. Yeah, I have started the things. Okay. So what we can do, we just talking about all those theoretical concepts, logical concepts. Okay. And Mhm. why it has happened and everything. We discuss about the things. Why it has happened, what you know about it, or what you not don't know about it. All those things we're going to discuss about in-depth information. Okay. Right. Every Right. single point we're talking about, every single point. So that Mahesh sir, when we are yeah, actually so sorry to stop you. yeah. When we are actually taking the things further, Hmm. so when you're, for example, you're teaching the information, the first domain, Hmm. information security governance, Hmm. right? So parallelly, what I wanted, so as you said, you will take me through the realistic scenarios and Hmm. the Yeah, interview kind of a questions also at the same time, what might come, meaning uh, uh, for writing the exam, whatever is required from the exam perspective as well as interview perspective and job also, meaning mixing all these things, three things. mm, I think you might have already cleared CISM. So for my knowledge and help, so as you yeah. know, I am also looking for a job, right? So at the same Mm, time, it is not simply for a job. Once after you get in, I get into a job also, I should also look from the realistic perspective, right? yeah, So yeah. that's the reason I need little bit of more insight. Yeah, Yes, yeah, yes, yes. Just let me finish everything and then you yeah. can doubt Correct, correct. anything, then you can let me know. Okay. Uh-huh. So all those theoretical, logical concepts, okay, what is happened basically. The number two things is I'm just talking about all those concepts, okay, like practical things. Practical, it means that, hey, sir, I need to do, like I'm going to provide some templates. Okay. You need to, I just going to provide some like templates, like, hey, like you just going to creating them strategies. Like I'm talking about some organization structure. Okay. I'm just talking about, hey, what is organization structure is all about? How do Mhm, you going to creating it to the same? So just going to create some architecture. mhm, Okay. And create some design on the same. Okay. So that's very, very important in the company. Suppose you are working in the company, understand the practical aspect. Okay. Because if you understand the practical things and the templates, like why it is a template? A template is nothing but reports, my dear. Okay. mhm, Because lots of reports things you're gonna be creating it. So how the reports you're gonna create? What are the things in the reports we will going to discuss about? Okay. And most importantly, the architecture and design. Okay. We going to, and the blueprint mhm, we're going to discuss about why it has happened, what is the right way of doing it, what are the concept things is all about. I'm talking about all this domain point of view. Like we have domain one, domain two, domain three, domain four. We have all those things available, right? What exactly we are doing it on the same time. So practical things, templates required, providing you reports, you're gonna creating it, architecture designs, you're gonna creating it, blueprints, governing, you're gonna creating it. Okay. And the third thing I'm just talking about some use cases. Okay. mhm. Use cases in many companies. Meaning of use case in the sense, say for example, related to the governance, the first information security governance. So the real scenarios, Yes. you are walking me through, right? Yes. Yes. Yeah. Yes. Okay. So real-time use cases I'm talking about here, that in the companies, why do Mhm. we require this governance is about? Why do we require the information security, right? Like I'm talking about here, like sir, why is the risk assessment controls point of view? So what is a use case? Why do we apply, sir? Why not we going to apply? Where is we going to apply? Where is it, like I'm talking about real-time use cases like implementation point of view. Mhm. Okay. Implementation, and suppose you're going to migrate some technologies, I would say that. Okay. Then you require some use cases. What is the best way to doing it, right? So what is the best practices we're going to following it, I would say that. Okay. So that is what the real-time use cases need to understanding. Because the thing is, you are joining a meeting with the client, right? And Mhm. client can say anything, like, sir, we need to doing this type of things, we are expecting this type of things to you, we are looking for this type of things. But as a security professional, as a security manager, okay, because once you're going to do CISM, you are become a security manager in the companies. Okay. Yeah. So security manager, the responsibility to understand the use cases. Sir, Mhm. it is you can say, sir, it is applicable, it is not applicable.
it is in scope or not, it is in a scope. Okay, so this is real time use cases I'm trying to let you know. Like XYZ company have some use cases. Suppose I'm a client, I'm going to provide you, hey, create a security program in a company. Okay, so what are the feasible things for you, you gonna doing it. So use case is very important. That's what we're going to discuss about many companies point of view. Number 4 is the case studies, use cases, and then we're talking about some case studies. Case study is very important because suppose you have working in a company and your company is facing some challenges like security program, like risk management programs. Okay, risk management things, your company is facing some challenges in the company, or suppose your company is facing some challenges into the designing and selection. Your company is facing some challenges into the security awareness training and training program sort of things. Your company is facing some challenges into the business continuity planning and disaster recovery planning. Okay, so there are so many different companies have some challenges. We're going to talking about some real-time use cases, real-time case studies. Hey, this company has faced some challenges, so that you are, sir, you can say, sir, I understand how to That doing one it. of the domains seems to be a BCM also, right? Business continuity management. Yeah, it's a part of it's a part of it. Yes, this is a. So, yeah. So, are we? So, how much of business continuity are we going to We have it? going, yeah, we have gone to Meaning, in depth. in depth. Okay. Yeah, in depth, everything we talking about in depth, which is Mhm. basically uh, applicable to your interview first of all, and then once you're working in the company, all those things are applicable things. Okay, Correct. we're Mhm. talking about some all those points, and then practical approach, then case studies, use cases, so that you are going to do all those things same time. The fifth things talking about, sir, we talking about some assignments. Okay, I'm Mhm. talking about some scenario based assignments. Okay. Uh, Scenario based. Okay, so what do you mean by assignments? Suppose I would say, hey, we have 500 number of employees company, and they are facing some email phishing links sent by the hackers, and you are the security manager. How do you going to do a security awareness training in the company, right? Mhm. First thing. And second thing, the company are doing some business continuity planning or disaster recovery planning, right? So what are the risks you are going to consider into the networks, into the cybersecurity point of view, into the network security point of view? What are the steps you're going to following at the same time? And suppose I would say, sir, you are going to migrating your office emails to the Office 365 on premises to the cloud. Then what are the risk assessment you're doing going to doing it? So Mhm. these are some scenarios I'm talking about here, and this number of employees and working in the company. So you are considered as a costing parameters, performance parameters, agility parameters, scalability parameters, everything we are talking about here into this assignments. So you have specific documentations you're gonna be preparing same time and share to me, sir. This is the assignments I have done it on the same. Number Okay. 6 things I'm talking about, sir, the interview questions answer. Oh, good. Okay. Questions and answers. Because why I'm gonna doing it this number, because once you have good understanding about all those things same time, then you are good go into the interview question answers here. If I'm Yeah. going to starting the phase and then asking the questions, there is no use of it, because once you're going to understanding all those use cases, case studies, assignments, practical things, you have all those things, then you can easily providing the things. Okay, so there are so many different type of questions gonna be asked in disaster recovery planning, business content planning. What is impact analysis you're going to doing it? What is incident management and incident response, right? So we have different type of compliance is going to be coming, sir. We have NIST incident response planning, we're going to doing it. So what is the best things we're going to doing it? Sir, what is investigation and evaluation things we're going to doing it? What are the eradication and recovery things you are doing it? And there are so many different types. Okay, security controls, implementation, selection, design, awareness, and so on here, right? That's you're gonna doing it. The 7 number things we're talking about, sir, is practical, is basically uh, season.
practice questions. Okay. Okay, basically exam point of view here. Yeah. Exams point of view. So suppose you're going to, sir, I would like to clear the exam. So what are the questions? So I'm just going to provide you lots of different type of questions, which is very, very important point to you for the Question bank. things. Question Question bank. bank, kind of. Okay. Okay, question bank, and I'm going to help you out to the what is the right answers for the same. So this is very, you know what, it's not complex examination of CISM, but it's the basic understanding. Suppose it is asking you are a security manager, what is the best options you're gonna doing it? Okay, this is Okay. what is best for the company point of view. Sir, and second thing, so for what I wanted to do is, once after you, so do you have something like flashcards? My friends are, meaning they used to have some CISM flashcards where, meaning it is like a simulator kind of a. Yes, dear, yes. आपके पास Yes. है क्या सर? हाँ, वो मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास में, मैंने काफी टाइम मतलब पहले यूज मैं किए क्या थे। करना चाहता हूँ कि मतलब वंस आफ्टर वी कंप्लीट 2 or 3 डोमेन्स, ऐसे ही मतलब आई जस्ट वांटेड टू टेस्ट कि मेरे को कितने से हाउ मच ऑफ सब्जेक्ट डिड आई व्हाट यू से आई हैव एक्चुअली अंडरस्टूड, एंड स्पीड भी रहना चाहिए ना, मीनिंग इट हाँ, इज नॉट जस्ट ओनली द राइट। सब्जेक्ट, स्पीड भी अगर स्पीड है तो um, so, because it is not the complete day that we are going to get, so only 3 hours, I guess, 2.5 hours to 3 hours. राइट 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 राइट। ठीक है, वो मैं सिमुलेटर से आपके लिए कर दूंगा। वो आप आजकल बहुत सारे पोर्टल्स आते हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा वो कम्प्लीटली, राइट। सो इसका आप डोंट वरी, मैं इसका निकाल दूंगा। मैं बस मैंने एक यूज़ किया था पहले, इसको एक बार मैं चेक करके निकालता हूँ के लिए, ठीक है। तो अपने पास में सीजन के जो देख रहे हो एग्जैक्टली इन दिस वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस। आप हमारे पास में हर तरह की So अभी आप डॉक्यूमेंटेशन दे है। रहे हो एग्जाम लेटेस्ट बुक ही है ना सर? ये दिस इज द कुछ, लेटेस्ट। हाँ कुछ लेटेस्ट बुक्स हैं, कुछ अपनी जो जैसे 15th एडिशन है, ये कुछ पुरानी बुक्स हैं इसके अंदर। व्हाट इज द लेटेस्ट एडिशन सर सीएसएम का? सीसम का सर 18th है अभी फिलहाल। आपके पास नहीं है क्या? मैं देखता हूँ मेरे पास में अभी, मेरे पास है, मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ एक बार मैं। 18th ही है, 15 या लेट मी चेक। मेरे पास में वो सारा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है सिस्टम का, मैं निकाल के देता हूँ आपको मैं। तो अपने हम्म, पास में ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ये सब कंप्लीटली डॉक्यूमेंट की कोई कमी नहीं है। हम्म, अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास में, जितनी भी मैंने पीपीटीज बना रखी हैं अपनी खुद की, और हम्म, उसके अलावा बुक्स भी हैं बहुत सारी, और अपने पास में सिस्टम के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। सो हम्म, अपने पास में काम करने के लिए बहुत सारा है, बट ये है कि बस आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए एग्जैक्टली इसके लिए। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए आपके, और आपके जो एग्जाम के क्वेश्चन हो गए सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, तो ये आपका तरीका रहेगा चीज का। ओके। नंबर टू थिंक, पहला चीज तो ये है। दूसरा कि आपको ये जो हमारा जो भी होगा मीटिंग, वो मैं जूम का लिंक आपका होगा, मैं आपको पूरा एक लिंक भेज दूंगा, वो हमारा परमानेंट वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके। जूम का लिंक भेजूंगा, एंड देन सेकंड चीज आपको चाहिए होगी रिकॉर्डिंग। हम्म। वो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स एक आपका एक क्रिएट कर। रिकॉर्डिंग मतलब इज इट द सेम थिंग व्हाट यू टॉट इन द क्लास, और is नो it something what you have recorded? नो right now what we have studied, like we Mm-hmm. discuss about whatever in the class, right? Today we Mm-hmm. have class, the Mm-hmm. class number 1, okay? This is Ah, class number 1 will be okay. there, Mm-hmm. ओके। सो इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको कंप्लीटली एक मैं गूगल अपना ये ड्राइव बना के उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, आपको फुल राइट्स दे दूंगा उसके ऊपर। डॉक्यूमेंट ठीक। भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और जो पर डे जो आपकी रिकॉर्डिंग्स होगी वो भी इसमें, यू वांट टू गेटिंग ऑल दोस रिकॉर्डिंग सेम टाइम। तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसी एक पोर्टल के अंदर डॉक्यूमेंट भी रहेंगे आपके जितने भी साइबर फ्रैट रिकॉर्डिंग। भी आपका है क्या सर? दैट साइबर फ्रैट और समथिंग, इज नहीं दैट मैं, योर? नहीं ये मेरा नहीं है बेसिकली। हाँ। So because earlier somebody else called me for that, so इसीलिए। नहीं वो मेरा नहीं है, वो मेरे फ्रेंड्स का है, गौरव सर हमारे जानते हैं, उनका है वो, मेरे फ्रेंड्स ही हैं, कोलिग्स है वो। हम्म। जितने भी अपने दिल्ली एनसीआर आउटसाइड बेंगलोर में है, सब जगह हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से। ओके, ओके। और सर दूसरा चीज है सर, आई थिंक वी आर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो हम्म so you tell me when should I act, because year end normally they give some kind of a discount offers for writing the exam. यस।
मतलब ब्लैक फ्राइडे बोलो, जो ब्लैक भी फ्राइडे, ऐसे कुछ हाँ। रहते हैं। और सो इफ यू, आई थिंक यू शुड बी हैविंग लॉट ऑफ पीपल हु मतलब I think so मतलब the thing is they give some kind of a 10% 15% ऐसा कुछ डिस्काउंट में भी मिलता है हाँ, एग्जाम वो लिखने के लिए। जो अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए, और अभी मेरे ख्याल से मैं बात करता हूँ, मेरे फ्रेंड है जो बेंगलुरु चैप्टर में काम करते हैं, तपेश। तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो इसाका के अंदर मेंबरशिप होता है ना, मेंबरशिप जो होती है इसाका की, वो हम्म। तुम्हारा जो एग्जामिनेशन प्लस मेंबरशिप वो तो होता है उसके अंदर कम्प्लीटली, तो उसमें कुछ डिस्काउंट अभी दे रहे होंगे हाँ, ईयर एंड के अंदर। एक बार बात कर लीजिए। और दूसरा चीज है सर, आप सो बिकॉज बिफोर एंड ऑफ द दिसंबर, सो विथ योर हेल्प वी कैन राइट, मीनिंग आई यस यस। पहले सीट बुक करके एक एंड ऑनलाइन ही है ना, हाँ, मतलब ऑनलाइन ही है, फ्रॉम होम। हाँ। हाँ, ओके तो मैं करवा दूंगा आपका वो एग्ज़ाम, सर, ऑनलाइन ही बैंगलोर है। में सर वन मोर थिंग, आप so you said you have some links, right? So हम्म, can we do it from the rather than from home? Because the problem is sometimes both the internets also, sometimes you do not know the climate or something like that all of a हम्म। sudden. So to avoid such things, तो अगर आपके पास कोई है, so where हम्म। we can go there and write it and they can also help, ऐसे कुछ है तो? देखो, अभी आप उसमें दो चीज है कि वंस यू आर डूइंग फ्रॉम होम, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो सकता है, राइट। तो हम्म अभी जैसे पीएसएन सेंटर होते हैं जो एग्जाम हम्म जिसके होते हैं ना, अपने सीजम के सीजा सीएसपी के होते हैं, ये तुम्हारे हम्म पीएसएन सेंटर में होते हैं तुम्हारे। तो हम्म। अगर आप पीएसएन सेंटर में ही जाके दोगे तो भी बेस्ट रहेगा, और ये जो सीजम और रहेगा, लेकिन का, मेरे को वो हेल्प कहाँ से मिलेगा सर? वो घर से ही मिल जाएगा आपको, घर से हम्म। ही, घर पे हाँ, चाहिए सिर्फ होगा घर बट से ही उसमें। मिलेगा, उधर जाने से वो पूरा ऐसा नहीं, सेटिंग नहीं होगा। हाँ, वहां से कोई फायदा नहीं है आपको जाने का, बट हम्म। अपना जो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इंटरनेट आपका जा, इंटरनेट की जो स्पीड हो वो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, 100 इंटरनेट एमबीपीएस। स्पीड अच्छा ही है सर, हाँ मतलब हाँ 50 to 100 Mbps का स्पीड हाँ, है। इतना स्पीड रखिए, और हाँ, बस दो दो ये कनेक्शन ही हो, रिक्वायरमेंट है। एक एयरटेल और दूसरा एक्ट और सब कुछ है तो। हाँ, देख, तो दो रिक्वायरमेंट है, एक इंटरनेट का है, और हम्म। दूसरा पावर बैकअप का, मतलब कि थोड़ा लाइट वाइट का भी है सर, इलेक्ट्रिसिटी है ना। मतलब आई हैव अ पावर बैकअप, नॉट अ हाँ प्रॉब्लम। हाँ, ये दो चीज है रिक्वायरमेंट, और कुछ नहीं करना आपको, बस आपको बैठना है और कम्प्लीटली सबका काम हो जाएगा, वो सेकंड प्रायोरिटी में बता दूंगा मैं आपको, जब एग्जाम आप जाओगे तो वो सब चीज मैं करवा दूंगा आपका। So what I am planning, sir, meaning apart from preparing, so in the last quarter, so after 15th or 20th of December, exactly from today, so हम्म। 1 month from now, if at all we can write, meaning that should be good because before end of the year there will be some offers where I wanted to enroll myself for the exam. तो मतलब हम्म। मेरे को भी थोड़ा सा सीरियसनेस आ जाएगा और उससे भी बात हो जाएगा ना। सो हाँ हाँ whomever हाँ, you say, राइट? अभी आप तो आप भी एक बार अभी, बात करके रख दीजिए सर, मतलब वो वन है ऑफ द मेरी, स्टूडेंट। वो मैंने जानकारी है मेरी, कोई आपकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास थ्री फोर वेंडर्स हैं, जानकारी में है मेरे, तो कोई ना कोई तो करा देगा उस टाइम में, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा उसका, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी फ्रेंड्स का कुछ ना कुछ एग्जाम कराते रहता हूँ मैं, तो वो हमारे रिलायबल है, उनकी ट्रेनिंग्स भी रस में आती रहती है, उनका खुद ओके का इंस्टीट्यूट भी है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। ओके, like the way you said they're going to charge 10K, right? Not much. हाँ, 10K 10K फिलहाल अभी राइट नाउ ये है, अभी अभी तो निकाल से इसी मंथ में, नेक्स्ट मंथ तक तो 2 मंथ तो ऐसे ही रहेगा, अभी कुछ फेस चेंज नहीं हुआ अभी तक। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो तो ये दिस इज, हाँ। सर पैरेलली मतलब आफ्टर, meaning what I'm thinking is once after we complete this the second half, so meaning I'll spend some time on CASM. So or do you want me to completely spend the time on CASM, completely devote on CASM, or parallelly do some other course also like cloud or something like that? CCSP and this is AK CCSK, AK ना, SK I have already completed, sir, long back. ओके, देन But AK, sir, these are the, CCSK is of no use. CCSK is of no use because I did it myself. Me and my friend, we sat in the office and we wrote. But we felt after doing it, it is of no use because
CCS के कुछ नहीं बोलते हैं एक्सेप्ट इट ओनली टॉक्स अबाउट व्हाट यू से what do you say? It only talks about infrastructure as a service or हम्म software as a service and ऐसे कुछ मतलब दो तीन हम्म पॉइंट है. So I have completed in 2016, ओके ओके। uh, August something, July or August, long back. तो ऐसा है कि अभी व्हाट आई कैन डू कि हम्म जो सीजन है उसमें ओनली 4 डोमेन है, राइट? देखो इसमें हम्म ये हम्म है। तो हम्म मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, यू हैव गुड एक्सपीरियंस एक्सपोजर, या कि जो इसके अंदर जो मैंने आपको पॉइंट बताए एग्जैक्टली है ना, तो हम्म मैं आई विल एक्सपेक्ट टू यू कि आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लॉजिकल कॉन्सेप्ट वो आपको आने चाहिए। डोंट वरी, मैं आपको, आप जो भी बताओगे, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लिसन योर थिंग दैट है व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स यू नो। मैं हम्म उसमें कुछ एडिशन करूंगा, मैं उसमें कुछ करेक्शन करूंगा कि नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, राइट सर. दिस इज। मतलब जो आपने बोला है वो सही है सर. मतलब सो इट इज नॉट, आई एम सो मीनिंग 15 to 16 years का एक्सपीरियंस है ना. तो जो भी आप बोलते हो इट इज नॉट, इट डजंट बोन्स फ्रॉम माय हेड. सो एब्जॉर्ब आई कैन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेर एवर इट इज लिटिल मीनिंग मेरे को बाउंस बैक हो रहा है तो आपसे पूछ के थोड़ा सा वो इनपुट ले हाँ लेता हूँ एंड इट विल हाँ बी राइट। इजी फॉर मी टू कंप्लीट. हाँ तो वही एग्जैक्टली व्हाट आई थिंकिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज वी हैव गोइंग टू डू वन डोमेन, राइट? तो इसमें या फिर 1 or 2 डोमेन वट एवर वी आर राइट नाउ, हम एक टॉपिक की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट यू हैव knowledge right now, and then I'm going to adding, I'm going to make some correction on the things, सर ऐसा नहीं ऐसा कहिए, this is right away, this is right things you can doing it। so इस तरह से आपका ट्रेनिंग मैं कराऊंगा एग्जैक्टली। तो आपका भी जहाँ आप हो उसके आगे आपको क्या आता है वो सब चीज़ मेरे लिए मैटर करता है, राइट? आप जितने जहाँ पर हो अभी, उसके आगे जो भी आपका मैं एडिशन करूंगा, दिस इज योर प्लस पॉइंट विल बी देयर, राइट? सर ये तो मुझे आता ही था, इसके आगे कुछ बताइए एग्जैक्टली सर, तो वो मैं ऐड सर करने की कोशिश मेरे को करूंगा। क्या लग रहा है सर. सो व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ इज, सो some okay, this will go on meaning daily, so daily or alternate days we are going to have 4 session per week, and हम्म I'll put lot of effort to absorb and I'll also read. That is हम्म point number one. And मेरे को बाद में सॉक टू टाइप टू और क्या हम्म। बोलते हैं और प्राइवेसी के ऊपर और थोड़ा सर, हैव यू आल्सो डन क्या बोलते हैं इसको, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थिंक कि आपका फर्स्ट ऑफ सीजन का 1-2 मॉड्यूल हो जाए, उसके बाद में आपका जो CCSP CCSK है, या फिर अब मैं बहुत बात करता हूँ GRC की बात करता हूँ, राइट? GRC लाइक जो कंप्लाइंस, ओके, मैं कंप्लाइंस की बात करता हूँ। कंप्लाइंस के अंदर जैसे मैं बात करता हूँ सॉक टू टाइप 2 ना, आप बोल रहे थे हाँ सॉक हाँ टू सर टाइप 2 का मुझे थोड़ा सा बताइए एग्जैक्टली, है ना? मैं थोड़ा सा हाँ. आपको नहीं कॉबेट का नहीं, ही सॉक टू बताऊंगा। टाइप टू मेरे को मैंने देखा हूँ, लेकिन एक ही चीज है कि मतलब यू जस्ट वॉक मी थ्रू और गिव मी हम्म, सम हाँ बेसिक बेसिक हाउ टू, नॉलेज। कैसे शुरू करना है, क्या करना है, व्हाट इज दैट दे आर एक्सपेक्टिंग, और हाउ हाउ डू वी स्टार्ट द ऑडिट, हाउ डू वी कंप्लीट द व्हाट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन. मतलब थोड़ा सा इनपुट दे दीजिए कि हाँ मैं वो बोल सकता हूँ कि आई हैव नॉट डन द सॉक टू टाइप टू ऑडिट, बट हाउएवर I have supported some of the audits which my organization has completed. So I'm comfortable enough. मतलब थोड़ा सा comfort level रहने से बाद में अगर वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आने से भी मेरे को उतना चिंता नहीं होगा ना, हाँ कि राइट I'll be राइट। able to reason, I'll be in a reasonable position to take the things further. यस, सो फर्स्ट Right? फर्स्ट वी Uh, गोइंग टू डू। सर सिर्फ सॉफ्ट सर पीसीए डीएसएस का के ऊपर हम्म, कुछ किया है क्या? हाँ हाँ मैंने ट्रेनिंग दे रखी है PCI DSS के ऊपर, मतलब मेरे PCI को DSS सर, आई डू एंड नॉट वांट द पीसीए डीएसएस ट्रेनिंग. सो ऑलरेडी आई हैव टेकन द ट्रेनिंग फ्रॉम क्रॉसबो. सो दे हैव ऑलरेडी गिवन सम सर्टिफिकेट एंड ऑल दिस थिंग्स, बट लेकिन मेरे को एक ही चीज चाहिए कि मतलब पीसीए डीएसएस का असेसमेंट कैसे वो है करना मेरे पास है. में। हाँ, तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर मतलब पैरेलली वंस आफ्टर वी कंप्लीट और बाय एंड ऑफ वी कैन पैरेलली डू दिस जीआरसी का जो भी कंप्लेंट्स के ऊपर है ना, थोड़ा बहुत पीसीएडीएसएस क्लाउड और क्लाउड का असेसमेंट, क्लाउड एसेस. सर कंप्लेंट्स में क्लाउड भी थोड़ा बहुत लिख लीजिए आप. हाँ
क्लाउड कंप्लायंस, यस राइट। क्लाउड असेसमेंट मतलब क्लाउड का बेसिक्स में क्या क्या करना है, व्हाट ऑल द हाँ, थिंग्स दैट यू हैव वो टू मेरे डू। पास है, पूरा गाइड का है कम्प्लीटली। तो मेरी बात सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीजम है इसके ओनली 4 डोमेन है ना, तो राइट, वन और दो 2 डोमेन, ठीक है। ओके। अब जैसे आपके 2 डोमेन कंप्लीट होंगे, 1 और 2 डोमेन कंप्लीट होने के बाद में फिर आप पैरेलली CCSP और CCSK है ना, ये वाला ट्रेनिंग हम चालू कर देंगे एग्जैक्टली। नहीं, बट विच वन, नॉट बोथ द थिंग्स राइट। हाँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग 2। तो आपको जो बोलेंगे सर, मैं सर मेरे को CCSP एंड CCSK व्हाट एवर यू प्रेफर एज पर So योर you said एक्सपीरियंस। which one will be better for me? I think CCSP first and then CCSK second option, I would say that. So आप पहले CCSP कीजिए completely, क्लाउड वेंडर क्या, NDR वॉट एवर दो चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको एक बार पूछूंगा एग्जैक्टली CCSP कंप्लीट आपको कितनी किस लेवल की नॉलेज है, राइट, Sir, एंड देन आई विल see, रिकमेंड। I'm looking from the cloud audit perspective. I'm not going to set up a cloud. I am not going to, I do not want it to work on the cloud. अगर मेरा कंपनी में और the whichever company that I'm working for, if they're actually having some client, sir, why, I think CCSP talks more about the cloud infrastructure. Why I'm not an infrastructure आर्किटेक्चर person, right? डिजाइंस, आर्किटेक्चर मेरे को डिजाइंस, आर्किटेक्चर का डिजाइन ही नहीं चाहिए ना, ठीक। मेरे को सिर्फ ऑडिट ऑडिट करना है इसको। और सो मैं पूरा सो आई एम अ जीआरसी पर्सन, नॉट अ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन, राइट। राइट अगर राइट मैं राइट, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता हूं तो मेरे को सब कुछ जानना चाहिए। सो मेरे को सिर्फ क्लाउड का ऑडिट का चाहिए, मतलब मीनिंग, सो whatever I do, I so meaning currently I wanted to know how do we audit from the company perspective. So why do I need to, so थोड़ा बहुत मेरे को उसको टेक्नोलॉजी पता है तो काफी है ना सर। हाँ, आपको जो बेसिक मतलब फंड, CCA के बेसिक, बाद अगर AZ 500 ऐसा कुछ चाहिए तो थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लेते हैं बस। लेकिन CC, बट you said you will ask which one will be good for me. So you said you will अगर check with your, तो अभी आपका जो उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो CCA बेस्ट चॉइस है, बट ये है कि आपको थोड़ा सा मैं रिव्यू करवाऊंगा आर्किटेक्चर डिजाइन्स का, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए आर्किटेक्चर का, कैसे कैसे क्या होता है, कौन कौन से, फिर उसके बाद में आपका ये CCA के चला देंगे एग्जैक्टली। तो ये आपका ट्रेनिंग 2 है, राइट। अभी इसमें मैं CCSP का नहीं कर रहा हूँ, CCSK की बात कर रहा हूँ, पर CCSP का जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक चीजें जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए वो, एंड देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द CCA की, दिस इज अ ट्रेनिंग नंबर 2 कराएंगे, राइट। और okay, आपको थोड़ा बहुत में जो ये GRC कंप्लाइंस हैं, जैसे SOC 2 टाइप 2 नॉट इन डेप्थ PCI सर, DSS, मतलब बेसिक, जीआरसी कंप्लेंट्स के बाद, हाँ। सो हाँ मेरे को मतलब कैसे काम चलाना है बस, मतलब हाँ। हिपा के ऊपर मैं काम किया हूँ। मतलब हाइट्रस्ट कंप्लीट, हाइट्रस्ट कॉमन सर्टिफिकेट, सॉरी हाइट्रस्ट CSF। देखो सो मैं अभी, मैंने काम किया हूँ, लेकिन सर थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट के ऊपर काम किया हूँ और SOC 2 टाइप 2 का रिपोर्ट्स के ऊपर काम किया हूँ। मतलब जब मैं मेरा लास्ट कंपनी में, और क्लाउड थोड़ा बहुत पता है लेकिन मतलब नॉट इन डेप्थ। और अगेन द प्राइवेसी हाँ, पार्ट आल्सो इन द कंप्लेंट्स। आई राइट थिंक राइट राइट, you forgot privacy. यस यस डियर यस। ERA BAC भाई, हाँ। Right, so privacy is Yeah. one of thing, right? So what we can do, we have, well, CSAM is the first thing. Second thing is your training number 2, we are going to starting after 1 or 2 week later, the CCSK training, and all those basic things, right? कि आप बोल रहे हो कि sir, if I required basic knowledge about the PCI DSS is all about, right? PCI DSS, PCI DSS के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन नॉट, मतलब मेरे को असेसमेंट अगर सी माई एज अ प्रोजेक्ट, एज अ मैनेजर, if at all my हाँ project actually deals with some kind of a पेमेंट का कुछ, सो उसका थोड़ा बहुत असेसमेंट करना चाहिए ना। तो हाँ, और फॉर एग्जांपल my company is actually dealing with some, it's a product based one where they have some, they maintain some data of the clients, right? So so obviously privacy
इसके ऊपर आ जाएगा, मीनिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट द क्लाइंट डेटा इज सिक्योर एट द सेम टाइम, whoever are the clients who are holding, मतलब फॉर एग्जांपल बिग बास्केट बोलो और amazon देख, so all these people are maintaining some data or credit card history, मतलब so sometimes they save our credit cards and all these things, and they are liable to go through the PCI DSS assessment. राइट राइट। सो देखो इसमें क्या है, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हो साइबर सिक्योरिटी में, मैंने कुछ अभी 2 दिन पहले एक भेजा था, PCI DSS 12 रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट PCI DSS, राइट। सो आपको इंस्टॉलिंग फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट होती हैं। करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट। चीज, राइट। एंड हाँ, हाँ। थर्ड सेकंड चीज, जैसे आप ऑडिटर हो सर, आई मैं ऑडिटर, आई ये चीज तो होना चाहिए, आई नो, बट सेकंड चीज होती है चेक लिस्ट, अगर आपको पता होगा। हम्म, ओके, हम्म, एज पर द चेक लिस्ट यू आर गोइंग टू ऑडिट दिस इज ऑल दोज थिंग्स। ओके 12 requirements, correct. ओके। तो अपने पास में चेकलिस्ट पड़ी हुई है PCI DSS की, राइट, मैं दिखाता हूँ आपको। तो हम्म, PCI DSS के चेकलिस्ट में आपको बताऊंगा, और आपको जो बताइए मैंने चेकलिस्ट आपको, जो इसके अलावा मैंने दिया हुआ है आपको, तो इसके अंदर आपको एज पर चेकलिस्ट आपको बस रिव्यू करना है, कैसे क्या है वो आपको मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कि क्या स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। तो उसके बाद में आप इसी हो जाएगा आपके लिए कि सॉक टू टाइप 2 करना है, PCI DSS है, इसमें क्या है, कैसे काम होगा, वो सब चीज़ें। लेट मी सर चेक। और दूसरा चीज एक बोलिए। सो मैं जब मेरा पुराना कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो सी मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक द इंडस्ट्री इज गोइंग टुवर्ड्स NIST का फ्रेमवर्क अपना रहे हैं वो लोग। क्यों सर, मतलब इज NIST कंट्रोल्स मच स्ट्रिंजेंट और टफर देन अदर, क्या बोलते हैं, कि so is it much better than other controls? Why they are going towards NIST? NIST आप सर, फर्स्ट ऑफ ऑल NIST जो कंट्रोल्स होते हैं वो तुम्हारे एग्जैक्टली यूएस बेस्ड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, इज यूएस बेस्ड, हम्म, राइट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो NIST होता है एक जेनरिक अप्रोच है, राइट, उसके अंदर ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं होता, उसमें उनका एक फंडामेंटल रिमेन सेम चलता है, फंडामेंटल जो उनके जो स्टेप्स होते हैं वो हमेशा सेम चलते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता एग्जैक्टली। अपने जो उनके क्या है कि जो वो जैसे बुक है तो उसका वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4 ऐसे लॉन्च होता है। आपका अगर हम्म, आपने फंडामेंटल एक बार पढ़ लिया NIST का, तो आपको हम्म, बस रिवीजन करना है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 ऐसे चेंज होगा एग्जैक्टली। बट कुछ हम्म, कंप्लाइंस ऐसे होते हैं इसके अलावा, जैसे मान लीजिए PCI DSS या फिर कंप्लाइंस या जो भी XYZ कंप्लाइंस होते हैं, वो कम्प्लीटली कुछ ना कुछ उसमें ज़्यादा चेंज होता है। तो 90% जो US बेस्ड कंपनीज होती हैं ना, जैसे कि XYZ कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, एज हम्म, पर द कंट्री, कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, सो वी हैव लॉट्स ऑफ आउटसोर्स बिजनेस कमिंग फ्रॉम US, राइट। तो हम्म। US वाले चाहेंगे कि अब हम अपने ही खुद की कंट्रोल्स, जैसे हिप्पा का। ओ, मेरे को अब समझ में आ रहा है कि मतलब ISO ब्रिटिश का स्टैंडर्ड है तो ये, और हाँ, NIST उसका स्टैंडर्ड है। यूएस तो का है। मतलब अगेन सेम विथ SOC 2 टाइप 2 आल्सो। SOC 2 हाँ टाइप 2 अगेन US कंपनीज दे वांट हाँ, देयर ओन कंप्लायंस। यस। अगर हाँ, मैं एग्जांपल बताऊं आपको, द प्रिंस 2 अगर आपने देखा होगा, प्रिंस प्रोजेक्ट इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, प्रिंस 2 एक ब्रिटिश, एक यूके का है पूरा कंप्लीटली हाँ, हाँ, स्ट्रक्चर, हाँ। राइट। एंड जो PMP है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, वो US हम्म, बेस्ड कंप्लीटली हम्म, है। तो PMP इज मोर टफर, ओके, देन प्रिंस 2। हम्म, वो तुम्हारा एक शॉर्ट प्रोजेक्ट में काम आता है, यानी कि वो इवेंट्स कंपनी है, राइट। तो हम्म। इवेंट्स करती है, तो एक मंथ, 1, 2 मंथ, 6 मंथ्स के लिए प्रिंस 2 होता है तुम्हारा, और PMP सर होता है ऑपरेशंस के और एक लिए। बात बोलिए सर, लॉन्ग टर्म में प्रिंस 2 मेरे को कुछ काम आता है क्या सर? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए PMP ऑपरेशंस के लिए बेस्ट रहता है, अगर आपको। नॉट इन ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशंस मतलब एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, व्हाई वुड आई रिक्वायर ऑपरेशंस? ऑपरेशंस में अगर टाइम मतलब चाहिए तो उस टाइम पे ले सकते हैं। हाँ, ऑपरेशंस के लिए PMP इज द राइट चॉइस। बट इफ यू गोइंग टू डू शॉर्ट प्रोजेक्ट्स इन द कंपनीज, डिफरेंट प्रोजेक्ट, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स करते हो आप, तो प्रिंस 2 इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि वो यूके बेस्ड हुआ है। तो आपको जो मोर चांसेस मिलेंगे जॉब ऑफर्स के, और जो कंपनीज मिलेंगी ज़्यादातर वो यूके बेस्ड कंपनीज मिलेंगी, जहां अपना आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रिंस 2 सर्टिफिकेट्स को आप। बट आप PMP करते हो तो ये ग्लोबल अप्रोच है, ग्लोबल है। इसको आप यूके में भी, ग्लोबली कहीं पर भी ये इसका काम चल सकता है इन चीज़ों के सर लिए। लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल है सर, मतलब हाँ, हैव टू राइट। डू लॉट ऑफ थिंग्स, और उसको प्रोजेक्ट भेजना चाहिए सब कुछ को। इट इज नॉट सिंपली एन एग्जाम, इट इज अ प्रैक्टिकल। उसको हाँ, भेजना है, वो अप्रूव करेगा बाद में,
ऐसा बहुत सारा है सर। वो मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है PMP Prince 2 की, ITL सबकी। तो बहुत Sir, PMP, see, nobody will write on like the way we are taking the help of CSM, right? पर PMP में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं, पहले था बट अभी राइट नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज लाइक मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर, राइट, आई हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो मैं चाहूँ तो सब चीज़ें कर सकता हूँ, बट ऐसे में कंप्लाइंस, क्योंकि मैं ISA का मेंबर हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं कर नहीं सकता, समझे, नहीं तो मैं ही आपका पेपर एग्जाम दे सकता हूँ। Okay. वेट सेकेंड। तो इसमें मैं आपको बोल रहा था NIST, तो इसमें NIST भी है, सब कुछ है कम्प्लीटली, ISO 27000 सब कुछ XYZ मिलेगा। अब ये आपका है PCI DSS, ओके, फ्रेमवर्क एग्जैक्टली। तो इसके अंदर आप जाके देखोगे तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट अपने पास में PCI DSS का टेम्पलेट्स भी हैं, और कैसे कैसे काम होता है वो सब चीज़ें भी हैं, राइट। सो आपको इसके अंदर बस ये देखना पड़ेगा कि मैपिंग कैसे करनी है, व्हाट इज ए कंपनी रिक्वायरमेंट। तो इसके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होते हैं, राइट, स्टेप 1, स्टेप 2, Oh, स्टेप 3। तो मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेबिलिटी, राइट। okay. Again, like PCI DSS with ISO, PCI DSS with NIST, ऐसा बहुत, मतलब हाँ, like the people want, they wanted to actually imbibe in their own standards. राइट। एंड सेकंड थिंग कि स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, SOA होता है इसमें एग्जैक्टली, कि Hmm. किसी किसी भी कंपनी में एप्लीकेबल है भी या नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो, राइट, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू द कंपनी और नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी। Hmm. First thing you need to be analyze, okay, this is what you're going to doing it. And second thing, once it is applicable, and then you're going to doing some assessment, okay, this assessment you're doing at same time. So this step by step way, my dear, to where we going doing it on the same. So ये सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा PCI DSS की, और साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा कि एग्जैक्टली देखो ये सब रिक्वायरमेंट है, और एज पर दिस रिक्वायरमेंट वी हैव अ चेक लिस्ट, एज पर द चेक लिस्ट वी हैव सम टेम्पलेट, वी सर, रिक्वायर्ड सम फायरवॉल का रिपोर्ट्स। ऑडिट भी हो जाएगा क्या इसमें? पीसी हाँ, फायरवॉल ऑडिट, अगर फायरवॉल का ऑडिट चेकलिस्ट कुछ है तो वो भी। हाँ, इसका चेकलिस्ट प्लस है बहुत सारे, देखो इसमें चेकलिस्ट मिलेगा आपको कम्प्लीटली। तो हम्म, उसमें फायरवॉल में जैसे ऐसा मैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल, राइट, मैं हम्म, एग्जैक्टली देखूंगा कि ओपन पोर्ट्स कौन से नहीं है, क्या करना पड़ेगा, वो आपको मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा एक्जैक्टली। इंस्टॉल, ओके। मेंटेन, कॉन्फ़िगर द प्रोसीजर ऑफ कार्ड होल्डर्स डेटा, डो नॉट वेंडर्स सप्लाइड पासवर्ड एंड अदर सिक्योरिटी पैरामीटर्स, राइट। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आता है, राइट, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए। फायरवॉल भी आता है आपका, है ना, वो सब भी आता है सर कार्ड होल्डर के लिए। सर, आर यू पीसीए एन्क्रिप्शन, सर्टिफाइड सर? हाँ, नहीं सर्टिफाइड नहीं किया मैंने, बट मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ उसका, PCI DSS का, हिप्पा का, और SOC 2 टाइप 2 का, टोगेफ का, कॉबेट का। मैंने पास्ट में काफ़ी ट्रेनिंग आ रखी थी, US पे, सब डिफरेंट कंट्रीज, तो वो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं एग्जैक्टली जब आदमी सीजा CSP कर लेता, कोई पूछता नहीं इनको, फिर ये तो कोई, जैसे आप ऑडिट करते हो ना, जब ही कोई पूछेगा आपको ये। पर आप हम्म, ऐसे ग्लोबल कंपनी में काम करोगे तो वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि योर जॉब इज नॉट गोइंग टू डूइंग एक्चुअल ऑडिट, बट यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दोस कंप्लायंसेस। ओके। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको मैं एक्जैक्टली गाइड भी कर दूंगा एक्जैक्टली कैसे काम होता है। तो वेट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इज योर training is your season, right, and then we talking about some training number 2 after 1 or 2 week later, CCLK we starting it, and same time we talking about some this compliances, okay, whatever ओके like that. सर, बाद में 2024 इनिशियल इसमें प्राइवेसी, सर अगर आपको पता, इफ यू नो समवन हु कैन डू, आई थिंक सीपीडीएसई और सी नहीं तो सीएपीपीई, ये कौन सा प्राइवेसी, बेटर है सर? CIPP प्राइवेसी वाला बेस्ट लगता है अभी जो जॉब्स के रिगार्डिंग, तो बेस्ट है वो। हाँ, हम्म, सीपीडीएसई मतलब आई थिंक इट टॉक्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी, लेकिन बहुत कम लोग पूछ रहे हैं उसको। CIPP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जॉब रिक्वायरमेंट अगर आप नौकरी पोर्टल पे जाके देखोगे तो हम्म, लॉट्स ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड CIPP, क्योंकि वो प्राइवेसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द कंपनीज, आपको जो प्रैक्टिकली तो हाँ, आपसे इतना नहीं करेंगे, बट सीपीडीएसई भी प्राइवेसी के ऊपर ही है सर। दैट्स एन फिर वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ईसा का सर्टिफिकेशन। हम्म, लेकिन एक ही चीज है, सीपीडीएसई टॉक्स लेस ऑन द, क्या बोलते हैं, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो सीपीपी टॉक्स मोर अबाउट द लॉस, पॉलिसीज, ऐसा कुछ, ऐसे हाँ, इसके राइट, ऊपर। लेकिन सीपीडीएसई टॉक्स अबाउट गवर्नेंस, मतलब हाउ डू यू हैव टू, आर्किटेक्चर के ऊपर ये सब कुछ आता है। मतलब दोनों अच्छे ही है, लेकिन
सो मतलब पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले काम सीख लो, बाद में सर्टिफिकेशन करो। हाँ नहीं, अगर आप अपनी कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको CIPP से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो सर आपका जो लेकिन प्राइवेसी के ऊपर आप व्हाट ऑल द थिंग्स दैट यू कैन टीच मी? प्राइवेसी के ऊपर तो आपका जो CIPP है ये कर लीजिए, ये मैं करा सकता हूँ नहीं नहीं आपको। नहीं नहीं नहीं, आई और वांट द प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्राइवेसी इंपैक्ट एनालिसिस से लेके सब कुछ, मतलब इट हैज लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मतलब गवर्नेंस और लॉस रेगुलेशंस, हाउ टू डू द क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेसी बाय डिजाइन, प्राइवेसी बाय सब कुछ है सर इसमें। तो हाउ डू वी हाउ टू देखो इसमें, इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज पता होना चाहिए। हाँ देखो, ये आपने क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके अंदर मैं आपको ये बोलता हूँ एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी इसमें प्राइवेसी के रिगार्डिंग आपको लगता है कि सर ये टॉपिक्स आपने हम्म, या कहीं जैक देखें जॉब पोर्टल पे या कहीं पर भी देखें, आप हम्म, उनका एक मुझे लिस्ट दीजिए कम्प्लीटली। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्राइवेसी के अंदर। सिक्योरिटी बाय डिजाइन बोल दिया आपने, है ना, इनक्रप्शन तुम्हारा हो गया, तुम्हारा साइफर का हो गया एग्जैक्टली, और बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट भी आता है कि आपको प्राइवेसी कैसे करनी है अपने कंपनी की। तो आपका एक सिक्योर जितने भी है ना, ये कम्प्लीटली आप एक बार टॉपिक लिख के लाइए, उसके बाद में फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को बता दूंगा। हाँ ये दिस वन हैपन, दिस हैज हैपन, दिस हैज हैपन, दिस हैपन, जितने भी चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो प्राइवेसी की बता रहे हो आप, ये एक मल्टीपल टॉपिक्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, कोई सिक्योरिटी के लिए है, कोई इंटरनल रिस्क असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, कोई कंप्लायंस रिगार्डिंग प्राइवेसी की बात हो रही है, कभी किसकी बात हो रही है। तो एक सब चीज़ें आप लिख के दीजिए मुझे एक बार, फिर मैं उसको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा एग्जैक्टली, हाँ ये मुझे आता है, इसका मेरे को नॉलेज है और इसका नीरज नहीं है, तो ठीक बेस्ट है रहेगा। सर। हम्म, ठीक है। तो ये जो था अभी मैंने आपको बताया, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ट्रेनिंग इज सीजन, सेकंड ट्रेनिंग इज CCA, ओके, 1 और 2 वीक बाद में जैसे आपको कंफर्टेबल हो जाओगे इसके अंदर। एंड देन द थर्ड वन इज बेसिकली आपका जितने भी ये जो कंप्लाइंसेस होंगे, इसमें आपका PCI DSS है, वो आपको मैं एज पर द टॉपिक, जैसे भी हम टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक में ऑटोमेटिक ही आएगा कुछ ना कुछ, तो मैं सर आपको उसी टाइम बता दूंगा। ये जो आपको वो लोग पता है ना सर, कैन दे आल्सो हेल्प मी विद CAPP? हाँ राइट, डेफिनेटली मैं उनसे बात एक करके देखूंगा। एक बार चेक कर लीजिए सर। हाँ, उनसे बात करके मैं आपको बताता हूँ एक बार। ठीक है वो सर। राइट, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके आते रहेंगे उनको मैं बहुत ही इन डेप्थ करेंगे। और जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता हूँ, सो द सिंपल वेरी क्वेश्चन आई एम गोना आस्किंग टू यू दैट, हे Sridhar, that what is the importance of the roles and responsibilities of the employees in the company, okay, and regarding the same we have some KPI and KRA will be decided, right? So could you please tell me that if you are a security manager, okay, first of all, you think like you are a security manager in the company, okay, you're going to take a decision based on the security manager, right? And then you just going to decide it, hey, we have legal actions, regulatory and conceptual requirement of the companies, right? कॉन्ट्रैक्चुअल, हाँ। Okay, conceptual requirements in the companies. So where you going to doing all those things, I would say that. हम्म, Okay, like we talking about here the organization structure of the companies. Why do we want to know that organization structure is very important in the companies? क्योंकि what happened कि decisions जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, right? कि top management to lower management, करेक्ट। right? है ना? और जो तुम्हारे वर्क होता है, वर्क एथिक्स होता है, तुम्हारे जो पॉलिसी, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस जो हम बनाते हैं एग्जैक्टली, जो गवर्नेंस बनाती है, राइट, उसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दैट इज वाई द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहता हूँ कि आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मुझे बना के दीजिए, तो आप कैसे बना के दीजिए, कैसा दिखता है ये, व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग इट, राइट? तो करेक्ट। इसका इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ एग्जैक्टली से कि, ठीक है, मैं आपको एक दिखाता हूँ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। अब इसको आपको कैसे क्रिएट करना है वो आपको मैं बताऊंगा, मैं कैसे क्रिएट होता है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट थिंग आपका ये हो गया, अगर आपने MS विजियो में काम किया है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, अगर आपने नहीं किया तो मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे होता है, राइट? सो दिस इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिजाइन कैसे होता है, हुज टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटीज ऑन द सेम।
sort of things, right? This is hierarchical organizational structure is all about. Okay. Then I would say, hey, Sridhar, could you please create the organizational structure of the companies? So आप कैसे करोगे? आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो सर मुझे MS विजुअल दे दीजिए आप, MS विजुअल पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ स्ट्रक्चर जो भी है। एक होता तुम्हारा लूसी चार्ट, राइट? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, 30 डेज तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कुछ भी आप इसमें बना सकते हो अपना। आप गूगल जीमेल के थ्रू आप लॉग इन कीजिए फर्स्ट, एंड देन यू कैन जस्ट गोइंग टू क्रिएट एनी आर्किटेक्चर डिजाइन। आपको क्लाउड करना है, आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, आपको ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वॉट एवर यू वांट। ओके, सो इसका मैं लिंक आपको सेंड करूंगा। सो यू जस्ट गोइंग टू क्रिएट the same sort of architecture designs. Who is the manager? What are the managers in the company? They are senior managers, they are the unit managers, and then they are the executives. They are going to following it. And what is the use case? What are the accountable, responsible on the same? What is the use case? I would say that. ओके, सो हम इन सब चीज़ों की बट प्रैक्टिकल लेवल पे बात करेंगे, राइट? जब हम बात करते हैं सेकेंड, जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजीज? मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि श्रीधर, कुड यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेजी वर्सेस द प्लानिंग? ओके, सब कोई बोलता है सर मैं प्लानिंग करता हूँ, राइट? लाइक हियर, बिकॉज आप एक टेक्निकल, राइट, यू आर टेक्निकल स्पेशलिस्ट पर्सन, आप एक टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, यू कैन से दैट। You can say sir strategy. Okay, strategy is the term, and then the somebody is coming from the project management. Okay, जो कुछ project manager होते हैं वो बोलते हैं planning. Without strategy you cannot have a planning. Strategy tells us मतलब कैसे हासिल करना है, और planning, okay, say both looks the same in terms of English. Strategy matlab, so we have a plan, so what do you achieve, what is your goal? लेकिन planning never talks about a goal. Strategy talks about a goal, मतलब क्या हासिल करना है, or so how do you have to achieve, that planning takes care of, meaning okay, based on what you require. Okay, for example, I'll take myself as an example. What is my strategy to reach to get into a good job and a good role with a desired salary? तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। सो वो स्ट्रैटेजी रहने से बाद में प्लानिंग कर रहा हूँ, मतलब विद द हेल्प ऑफ यू। ओके, वो मेरे को क्या चाहिए, कैसे हासिल करना है, और क्या क्या चाहिए, मतलब एज ऑन टुडे, लुकिंग एट द फ्यूचर, मतलब क्या आ सकता है मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और बिटकॉइन, सो बिटकॉइन नहीं है, ब्लॉकचेन, और ये सब कुछ आ रहे हैं आजकल का तारीख में। सो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ये सब कुछ मतलब मिला के, इट इज नॉट दैट आई शो blank face to my company. Okay, so as a manager or a senior manager, you should. It is not that you should. They are not expecting a manager to be a क्या बोलते हैं इसको, subject matter expert. But when somebody is talking to you in English or in a plain language, you should. It is not that, okay. For example, someone from China comes and talk to us, to you and me. So at least 95% of the things we'll not be able to understand, because we do not know Chinese, we do not know Mandarin, right? Right. So if at all we were there for at least 4 5 years, at least 10 20% तो घुस जाएगा brain में. Okay, then we can understand and reply back to him in English. But that is what planning helps us to achieve the strategy, meaning helps us to reach the goal step by step. राइट। तो जो स्ट्रेटजीज बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, राइट? टेक्निकल वर्ड होता है। यू राइटली सेड कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात करते हैं, ओके। एक होती है प्लानिंग की, हमें जैसे इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, उनको हराना है एग्जैक्टली, या फिर ऑस्ट्रेलिया को। एक होता है स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, एवरी प्लेयर की क्या उसकी एडवांटेज है, क्या उसका बेनिफिट है, कैसे खेलता है, कैसे होना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी कहलाता है एग्जैक्टली, कि स्टेप बाय स्टेप की आपको एक एक स्ट्रेंथ पता है, एक एक वीकनेस पता है, बट ओके यू हैव सम टेक्निकल एवेल्यूएशन करते हो, आप एक वीडियो देखते हो किसी भी चीज के लिए, तो वो स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है एग्जैक्टली। प्लानिंग में हाँ ठीक है, वी हैव टू play well, we have to doing this type of things, we have to bowling
फर्स्ट ऑफ वॉट एवर, सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन टू द आपके जो भी होते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट? तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में बोलते हैं प्लानिंग कैसे करनी है, क्या होगा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। बट स्ट्रेटजी के अंदर बहुत ही टेक्निकल्स होते हैं तुम्हारे। फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है तुम्हारा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या वीपीएन है, वीपीएन में कौन सा है, रिमोट रिमोट वीपीएन है, साइड टू साइड वीपीएन है, कौन सा है, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स के अंदर SSH256 है या फिर MD5 टेक्नोलॉजी है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो इन डेप्थ वी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजीज प्लानिंग only just on step one, step two, step three, SOP sort of things. Where will this things come in, sir? So all these things also will be in part of CASM. Yes, this is I'm talking about the difference information security strategies point of view, right? मैं एक स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ, आप एक एक वर्ड्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट? वो होता है सीजन का, राइट? तो मैं इसी का एक एग्जांपल बता रहा था, स्ट्रेटेजीज। अगर आपसे बोलते हैं सर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लानिंग भी हो सकता है, बट ये स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी का मतलब आप समझिए कि वो टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, राइट? And suppose we talking about some more things like vulnerability and control deficiency analysis. So vulnerability assessment क्या होता है, penetration testing क्या होता है, red team, blue team, grey team, purple team, ये क्या होती हैं teams, ओके? vulnerability और threats में फर्क क्या होता है? तो ये सब बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ सिक्योरिटी मैनेजर। तो मेरे को आपके पता पास है सर, थोड़ा बहुत काम भी किया हूँ कि मतलब आई वे बैक इन 2010, आई थिंक 12 to 13 years बिफोर, मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग का टीम में काम किया हूँ, लेकिन आई डिड नॉट डू अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। लेकिन मेरे को पता है कि क्या है, मतलब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या है। सो आई वर्कड ऑन नेशेस एंड एनमैप, राइट? सो राइट वो दोनों चीज के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया हूँ 4-5 महीने के लिए। और someone from UK has also uh, has come and he has taught us a little bit on penetration testing. लेकिन मेरे को I did not get a chance, and I'm not very much interested in penetration testing because that I know I'm from a commerce background and later on moved to technical. तो इसमें आपका खुद का exploits लिखने का and you should also be good in some software. राइट अगर राइट आई एम नॉट वेरी गुड इन सॉफ्टवेयर, सो मेरे को क्या है, आई फील दैट ओके सेमी टेक्निकल, मतलब फ्रॉम अ कंप्लायंस इज गुड फॉर मी, इज व्हाट आई थॉट। यस यू सर राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, सब कुछ कहाँ पे आता है सर? ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है, SDLC है ना, SDLC। आज एसडीएलसी इसमें वो ही आता है? आजकल वहाँ नहीं, वो अलग चीज है, वो तुम्हारे प्रोग्रामिंग में आता है। वो उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर को राइट करने आता है ना, सॉफ्टवेयर राइट करते हैं जब खाता हुआ आता है। बट आई एस थॉट डी दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सीएसएम, इज व्हाट आई थॉट। ओके। यस लिटिल बिट ऑफ once the topic will be coming, I will demonstrate. बट अभी राइट नाउ SDLC की जगह एजाइल आ गया। एजाइल स्क्रम जानते हो, स्क्रम ओके। एजाइल, वो सब आ गया एसडीएल पता है सर। है ना? तो हम जब हम डेवसेकऑप्स करते हैं ना, डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस थिंग्स, राइट? हम्म। तो उसके अंदर तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट आता है एग्जैक्टली। तो उसमें हम एजाइल आता है एग्जैक्टली, स्क्रम आता है तुम्हारा, स्क्रम मास्टर। स्क्रम यस मास्टर, करेक्ट। ओके यस। वो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत मेरे को टच बेस हो गया सर। मतलब व्हेन वंस आफ्टर आई लॉस्ट मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेरा प्रोजेक्ट वापस चला गया है ना, सो दे मेड मी टू वर्क ऑन लिटिल बिट ऑफ दिस क्रम, ये सब कुछ इसके ऊपर काम किया हूँ। मतलब इसका शेड्यूल करना है, और स्क्रम मतलब दे वर्क ऑन मॉड्यूल्स, each and every module, and again they'll come up with a lot of इस मॉड्यूल में so and so problem is there, that module, and slowly मैंने थोड़ा बहुत तो पता है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत। नहीं राइट नहीं पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि once you are working as a security manager, you think like the hey, I going to managing the number of people, okay, I have number of people, you have to managing it, and then आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए exactly. So that is what I'm talking about here, each and everything in depth things we're talking about, very advanced things we're talking about here in the Yeah. companies, right? अब जैसे एग्जैक्टली कि मैं थोड़ा सा एक और बात करता हूँ, इंफॉर्मेशन एसेट्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशंस की बात करता हूँ। तो इसका बताइए एग्जैक्टली कि एसेट आइडेंटिफिकेशंस, do you think what are the assets in the companies, how do you classify this assets, and what is the importance of asset classification identification, anything whatever you know, then I will let you know things what is this things is all about.
Okay, sir. Because अगर आपको asset identification you don't know, then you cannot prevent the assets of the company, right? Yeah. So इसका कुछ बताइए exactly what are the assets in the companies? First of all, what assets and how do you identification? Human asset is there. Every information is also asset, and human assets. They have the machines, hardware, software. सब कुछ आता है इसमें. हाँ, right. So देखो इसमें एक होता है एसेट थ्रेट मॉडलिंग, अगर आपने नाम सुना होगा. Correct. एसेट थ्रेट मॉडलिंग, राइट? तो इसमें एसेट्स होती तुम्हारी, देखो दो तरह की एसेट्स होती है. मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड करता हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा. अभी मैं केवल रिव्यू करवा रहा हूँ तो आपको कितनी नॉलेज आपके अंदर है वो सब टेस्टिंग एंड देन वी कैन. ओके, एक होती है तुम्हारी टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, एंड एक होती है तुम्हारी इंटेंजिबल, राइट? सॉफ्टवेयर. यस. ओके, अब मैं बोलता हूँ कि श्रीधर, व्हाट आर द टेंजिबल एसेट्स वेयर यू कैन टच, यू कैन, ओके, यू कैन फील. सो आप कुछ टच कर सकते हो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एसेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर सिंपली. कंप्यूटर्स. ठीक है, ओके. अब सॉफ्टवेयर. अब इसमें भी बहुत चीजें होती हैं कि फिजिकल एसेट्स में सर हमको केवल उसी एसेट्स के बारे में वी गोइंग टू फाइंड आउट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, राइट? हमें फालतू के एसेट्स से मतलब नहीं है, हमें केवल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो एसेट्स हमें चाहिए. कि जैसे आप बोलोगे सर आप लैपटॉप्स में होती हैं, हार्ड डिस्क उसमें होता है, राइट? मेमोरी में होता है, एग्जैक्टली, है ना? होता है एग्जैक्टली. ओके. मेमोरी फोरेंसिक करते हैं ना. once I'm doing a CHFI, okay, cyber hacking forensic investigation things. जब मैं CHFI करता हूँ, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, तो उसमें मेमोरी होते हैं, मेमोरी डंप लेते हैं हम, राइट? अगर आपने VAPT किया हो तो उसमें मेमोरी डंप लेके अंदर मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो हम निकालते हैं. अब मेमोरी भी टू टाइप्स की होती हैं, ओके, रीड ओनली मेमोरी एंड रैम एंड रोम. ओके, तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा, है ना? तो लैपटॉप मेमोरी तुम्हारा, जो तुम्हारा डेटा कार्ड्स होते हैं तुम्हारे, इसमें डेटा जाता है, एंड सो ऑन डियर. इट कैन बी लाइक, यू कैन से where it is going to affect in the companies. या मैं क्यों बता रहा हूँ आपको टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग आल्सो. ओके, जब हम ये करते हैं बिजनेस कॉन्टिटी प्लानिंग करते हैं तो हम जितने भी फिजिकल्स होती हैं यानी कि नेचुरल डिजास्टर से इम्पैक्ट हो सकते हैं एसेट्स, हम उनको भी चेक करते हैं. ठीक है, तो अब तुम्हारा ये सब चीजें हो गई, ETC बहुत सारी हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में. इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं आपके हिसाब से, जिसको हम, जैसे आपने बताया सॉफ्टवेयर, या एनीथिंग एल्स? यस. क्या बोलते हैं इसको? पेटेंट्स. यस, राइट. पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क. कॉपीराइट्स. हाँ, करेक्ट. ओके, और तुम्हारे ट्रेड सीक्रेट, और तुम्हारे लाइसेंस, आपने सुने होंगे MS विंडोज के लाइसेंस, तुम्हारे जो विंडोज के रिसर्च का लाइसेंस. जो भी वर्क है उसके ऊपर. हाँ, वो रिसर्च सब, वर्क. है ना? तो ये सर्च वर्क, तो तुम्हारी जितनी भी हैं सबसे ज्यादा इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं तुम्हारी. इनको इनको आपको रोकना पड़ता है, यानी कि एक जो एसेट्स साइबर अटैकर होता है वो इन्हीं सब एसेट्स को वो चाहता है कि कंप्रोमाइज करे. Okay, so this is all about the intelligence sets. Okay, the second thing we talk about here right now, asset identifications, and then I'm talking about some classifications. Why do we do classification of the assets? अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप इसको पूरा रिव्यू कीजिए, आपका एसेट सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा उससे. वेट सेकंड. ठीक है, ये तो इसका PPT है, मैं PPT दे दूंगा आपको, साथ साथ में आपको मैं इसका कुछ चीट शीट्स भी दूंगा, मैं इसका एक माइंड मैप भी दूंगा आपको. ये चीट शीट है और ये इसका माइंड मैप भी होगा. तो इसको आप जब इसको स्टडी करेंगे तो यू हैव क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, like classification levels, military sector and private sector, कि आपका top secret, confidential, sensitive, unclassified, sensitive, confidential, private, all those things. Typical data retention policies, data security controls, right? Then data ownership, data remnants, the standards, different type of standards we're talking about here, security policies and standard guidelines, data retention policies, data
क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इज ऑल अबाउट। तो ये सब एग्जैक्टली क्या है, आपका एसेट सिक्योरिटी का पार्ट बनता है तुम्हारा। तो एसेट तुम्हारी एसेट सिक्योरिटी करते हैं। एंड सेकंड थिंग्स इफ यू टॉकिंग अबाउट सर, वी आर गोइंग टू डू सम माइंड मैप्स। ये तो आपका थ्रेड चीट शीट थी, ये कुछ माइंड मैप्स है आपका। और ये तो मैंने दूसरा बोल दिया, सेकंड। माइंड मैप्स क्यों चाहिए सर? माइंड मैप्स ओनली शॉर्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। कि आपको फिजिकल की बात करते हैं ना, फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इसमें कितनी तरह की सिक्योरिटी आती है तुम्हारी। जैसे मैं बोलता हूँ सर फिजिकल में सीसीटीवी कैमरा आता है ना, आपका आईडीएस आता है तुम्हारा, डॉग एंड फायर रजिस्टर तुम्हारा आता है, तो कंप्लीट हम बात करेंगे। ये तो केवल इसलिए चाहिए होता है माइंड मैप। और ये जो हमारा, कि अगर आप एज ए वर्किंग एज ए सीसो बात करते हो या फिर सीटीओ बात करते हो, यानी कंप्लीट कंपनी का हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। यानी कि मैं कंपनी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ, तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर को जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं कंपनी के अंदर, या फिर तुम्हारे फायर एग्जॉस्टर लगे हुए हैं कंपनी, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं तुम्हारे, है ना, तुम्हारे कंप्लीट चीज का पता होना चाहिए। यानी कि रिकवरी कैसे करोगे, कंपनसेटिंग कंट्रोल्स कौन से होते हैं तुम्हारे, टेक्निकल कंट्रोल्स देखिए आप, टेक्निकल डिटेक्टिव कंट्रोल्स, डिटेक्शन कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स, करेक्टिव, रिकवरी, कंपनसेटिंग कंट्रोल्स, ये केवल टेक्निकल कंट्रोल्स पॉइंट ऑफ व्यू है आपके। मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, बेसलाइन है, इंक्रिप्शंस, वायलेशंस, 2FA 3FA, फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इंक्रिप्शंस एंड सो ऑन डियर। सो जो सिक्योरिटी है बहुत इन डेप्थ होगी एग्जैक्टली कंप्लीटली। और हमको एसेट्स हमारी होती है, उसको कैसे कंट्रोल करना है ना। हाँ। आपने देखा होगा आईटी आईसीटी कंट्रोल हो तुम्हारा, ठीक है। इसमें 20 टाइप के कंट्रोल्स हो तुम्हारे होते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर, जिसके अंदर आप ऐसे इंक्रिप्शन कैसे करते हो, एसेट्स एसेस एक्सेस मैनेजमेंट कैसे करते हो, वो सब तुम्हारे कंट्रोल्स होते हैं तुम्हारे एग्जैक्टली। कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कि आपके पास में चैलेंज ये है कि इंफॉर्मेशन एसेट्स कौन सी है और क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, फिर उनको रेमेडिएट कैसे करना है, राइट। तो आप उनकी बात करेंगे एग्जैक्टली। हम भी टॉकिंग अबाउट मोर डेप्थ कि आप कंट्रोल कैसे लगाओगे, प्रिवेंटिव कैसे करोगे, और वो सब काम कैसे होगा तुम्हारा, राइट। तो डिटेक्शन में कैसे काम होएगा सर, हम बात करते हैं डिटेक्शन में। तो डिटेक्ट कैसे करेगा सर, हम वी नीड टू इम्प्लीमेंट सिम सॉल्यूशन इन द कंपनी टू डिटेक्ट द थिंग्स, ओके। तो आपके जितने भी लॉक्स इवेंट्स अलर्ट्स आएंगे उसको डिटेक्ट करेगा, राइट। हम आईडीएस आईपीएस को इम्प्लीमेंट करेंगे टू इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस डिटेक्ट करेगा फायरवॉल के अंदर, राइट। तो हम पहले चीजों को सर्च करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर उनको प्रिवेंट करेंगे अगर वो सिक्योर नहीं है तो। देन द अदर टॉपिक इज इंफॉर्मेशन पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस, राइट। तो ये आपको पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस क्या होते हैं, ये सब आपको कंप्लीटली इन डेप्थ। मैं कहता हूँ कि श्रीधर आई वांट ए आईटी पॉलिसीज, लाइक कैन यू प्लीज शेयर मी सम पासवर्ड पॉलिसी इन द कंपनी। सर मैंने कभी बनाया नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको टेम्पलेट दूंगा, उसको बना के लाइए आप। उसको बनाओगे सर, व्हाट आर द स्टेप्स, मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूँ, आप उसको टेम्पलेट को आराम से बनाइए। द यू नो व्हाट फंडामेंटल रिमेन सेम, ओके। कंपनी के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो आप, बट फंडामेंटल रिमेन सेम रहेंगे, यानी कि जो स्टेप्स होंगे वो सेम रहेंगे। पासवर्ड चेंज पॉलिसी, यू कैन से टेम्पलेट, चाहिए मुझे, तो ये आपके पास में आ गया। तो अभी मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगा, उस टेम्पलेट को आप आके चेंज कर सकते हो, बना सकते हो अपने हिसाब से कि सर ये है मेरा टेम्पलेट। तो दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच आई वुड से दैट, कि प्रैक्टिकली आपने चीज को समझ लिया कैसे होता है तुम्हारा ये, राइट। पासवर्ड पॉलिसी सैंपल ओवरव्यू, पर्पस, स्कोप, पॉलिसी, जनरल गाइडलाइंस, पासवर्ड एडिशन, ऑल दोस थिंग्स, ओके सेम थिंग ये रहेगी आपकी, आपके पास में रहेगी। अब मैं क्या करूंगा आपको कि आई एम जस्ट गोना प्रोवाइडिंग सैंपल, एक एक्सेल फाइल में, वर्ड फाइल में आपको सैंपल भेजूंगा इसका, पासवर्ड इन पॉलिसी का, you need to creating it as per your company's point of view, okay। like I'm talking about here like change management policy, okay। आपको चेंज क्रिएट करना है, चेंज मैनेजमेंट क्रिएट करना है। चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी टेम्पलेट इन द कंपनीज, राइट। तो आपको एक टेम्पलेट में आपको भेजूंगा, आप उसी चेंज मैनेजमेंट टेम्पलेट को आप
अपने हिसाब से as कंपनी per बना के दीजिए मुझे सर, दिस टेम्पलेट, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ड फाइल, ये फाइल वर्ड फाइल मैंने कॉपी कर ली यहाँ से, राइट। देन अंडरस्टैंड हियर कि सर क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर, तो आपको कैसे बनेगा एग्जैक्टली, राइट। तो ये सब आपके प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट का नेम, रिक्वेस्टेड चेंज डेट, ऑथर, डेट, वर्जन, यहाँ पर डेट है, वर्जन है कब, ओके, वर्जन 1.1, 1.2, व्हाटएवर, डिस्क्रिप्शन, हु इज द ऑथर, यू प्रोवाइड योर नेम ओवर देयर, ठीक है। अब पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके, स्टेक होल्डर्स को, स्टेक होल्डर है तो आपके इसके अंदर है ना, तो जो जो टीम आप, जो चीज आपके काम की है उसको रखिए, जो चीज काम की नहीं है उसको उठा के डिलीट मार दीजिए आप, ठीक है सर। डेवलपमेंट कॉस्ट, चेंज प्रोसेस, प्रोसेस चेंज कैसे होगा, अप्रूवल कॉल देगा, आपका रोल बैक प्लान क्या है, कि कौन कौन से इसमें रिस्क है आपके साथ में है, वो कंप्लीट आपको एक डॉक्यूमेंटेशन सबसे बना के रखना है। So what you can go, you're going to get conceptual knowledge, you're going to get the logical concepts, you understanding the practical approach, you're going to creating some reports point of view. So आपको श्योर कंप्लीट एक कंपनी में कैसे काम होता है वो प्रॉपर आपको आ गया कि सर मैं समझ सकता हूँ कि चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या टेम्पलेट होती है, कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या चीजें हमें इसमें चाहिए होती है। राइट सर। सो सर वंस एक यू, बात बोलिए आप, मतलब हम वो वर्ड फाइल के ऊपर जाइए आप, एक एक मिनट, मतलब वॉट एवर वी हैव रिटन द प्लान सब कुछ, अच्छा, तो हमारा प्लान के हिसाब से हाँ, वर्ड फाइल, हाँ, तो नीचे आइए सर, मतलब जो लिखा है ना, मतलब ओ सी आई, हाँ, और नीचे, नॉट दिस वन, थोड़ा सा ऊपर जाइए ना, हाँ, दैट्स इट सर। When can I, so getting a reasonable knowledge on all these areas, मतलब थोड़ा बहुत तो है, सो SOC 2 टाइप 2 के ऊपर मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है, और PCI DSS में बेसिक नॉलेज है, नॉट वेरी मच टू एन एक्सटेंट वेयर आई कैन डू अ ऑडिट। HIPAA, I know. I worked a bit on high trust common security framework. मेरे को the purpose पता है और क्या क्या देखना है वो भी पता है सर। क्योंकि मैं एक साल उसके ऊपर काम किया हूँ, मतलब थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट ऑन फॉर यूएस क्लाइंट, तो थोड़ा बहुत तो पता है मेरे, बट नॉट आई, दैट इज द पर्पस इज नॉट अ कंप्लीट HIPAA assessment, it is just a, क्या बोलते हैं इसको, थर्ड पार्टी रिस्क असेसमेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव। और GDPR थोड़ा बहुत तो पता है, और क्लाउड भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बहुत सारा नॉलेज में गैप्स है सर। तो इसको फिल करके व्हेन कैन आई एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग इनटू अ जॉब, एंड व्हाट इज द राइट टाइम? देखो अभी आप एक काम कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे करेक्ट। डाउट्स आते हैं, राइट, अभी की सीजन का भी है, अभी आपके CAK का भी है, साथ साथ में पॉलिसी कंप्लाइंस का भी है, आपको जो बता रहे हो एग्जैक्टली है ना। तो इसमें व्हाट आई कैन डू राइट नाउ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू डू सीजन, साथ साथ में अगर आपके उसमें टाइम मिलता है ना, अभी जैसे 1 और 2 वीक्स लेटर, तो आपका एक चीज पकड़ लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर, PCI DSS, अब इसमें आपको कितना नॉलेज है, राइट, whatever knowledge you have, like my checklist, I'm talking about some firewall, I'm talking about some antivirus, I'm talking about some how to physical restrict access of holders data, जो भी XYZ चीज है, मैं आपसे वही क्वेश्चन पुट अप करूंगा जो आपके कंपनी में काम आएंगे, राइट, मैं ज्यादा नहीं, ओनली हाफ एन आवर 1 आवर सेशंस वी कैन डू। करेक्ट तो करेक्ट। आपको जो भी प्रॉब्लम हो सकती सर मेरे को इतना आता है, इतना मेरे को बताइए, तो मैं एक्सपर्ट जैसे सपोज इंस्टॉलिंग ए फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन थिंग्स आपको ये आता है, सर अब ये फायरवॉल का मैं इंस्टॉल तो कर दूंगा, इसका बैकअप कैसे होगा, ओके, हाँ इसका सर, रिस्टोर मैं कैसे क्या सोच रहा हूँ करना है, सर, मैं क्या सोच रहा हूँ सर, सीसम विल हैव ऑल्टरनेट डेज, लेकिन वो मतलब बीच में एक दिन आता है ना, तो शाम और इन द इवनिंग और नाइट ऑल्सो, वेन एवर इट यू आर फ्री, 9 to 10 बोलो, ऐसा कुछ, मतलब दिन भर मैं सीसम के ऊपर ही वो, आई विल ट्राई टू go through all those things whatever you taught, and evening time, so मैं क्या सोच रहा हूँ उसको एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर ऐसा कुछ, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, नहीं तो 1 आवर बिफोर यू गेट हिट द बेड, थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी होने से थोड़ा सा टाइम भी सेव हो जाएगा ना सर, मतलब सो द आई कैन
complete it by December and start from at least December ending और last week से थोड़ा job देखना भी शुरू कर सकता हूँ ना. हाँ. So Okay. because by I wanted to complete CASM before Christmas or little or 25th नहीं, पहले हो 27th. जाएगा इसका, इतना टाइम नहीं लगेगा, 4 डोमेन है और आप बस 2 आवर्स. तो आप इसके साथ एक बात करके देख लीजिए सर. CASM का मतलब व्हाट इज द राइट टाइम एंड ऑफर्स कुछ रहने से. सो यू टेल मी व्हेन शुड आई एक्चुअली इसाका का ये भी करना चाहिए ना. सो वी हैव टू टेक अ मेंबरशिप एंड देन राइट द एग्जाम एंड ऑल दिस थिंग्स. तो मैं आज शाम को बात करता हूँ उनसे. उससे बात कर लीजिए. ऑफर्स कुछ रहता है मे भी मतलब हमारा ग्रुप जो है ना थोड़ा बहुत मेरे को भी पता है लेकिन पूछ के रख लेता हूँ कि मतलब व्हाट टू डू मतलब इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ. तो वो इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन कर लेता हूँ और एंड आई विल गो थ्रू यू ओनली. हाँ ठीक है, परफेक्ट है. हम्म. ये परफेक्ट है, ठीक है. राइट सर. तो मतलब टुमारो. सो सो today you are going to give me some you are working on the your so जो भी आपने कुछ access दिया है ना आपका. so you'll give me some video. I'll go through it today because today is a good day. so it's एकादशी है और अच्छा दिन भी है. so I wanted to go through it first and जो भी आप देते हो I'll just go through it before I come to the class day after tomorrow. so tomorrow what shall we have sir? Again CASM or CSM, first domain. first domain? Yeah. And okay, day after tomorrow we are not going to have anything. So Yes. Saturday we are not having anything on CASM, but Saturday night what? How about the general topics, sir? मतलब HIPAA नहीं तो CASM नहीं तो क्लाउड के ऊपर थोड़ा बहुत टच बेस ऐसा कुछ alternate days में कुछ यूज कर सकते हैं सर. Can हाँ, we मैं ठीक है. utilize those things? हाँ, मैं आपको भेज दूंगा General कुछ. things जो भी हमने बात की है ना. So राइट. मैं भेज दूंगा because आपको in the और interest of उसमें time. हाँ. मेरे कुछ और भी स्टूडेंट रहेंगे उसमें, जो इवनिंग वाला सेशन रहेगा ना अल्टरनेटिव डेज के अंदर, इवनिंग वाले के अंदर. तो उनको भी कुछ डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं. अभी आपको जैसे आपका है ये आईएसओ वाला ना, इसको भी कंप्लीट करेंगे, ये जो आपका डाउट वाले चीज का. हाँ. ठीक है, परफेक्ट है. राइट सर. ठीक है, मैं आपको एक सीजन का भेजता हूँ और एक उसका भी आपको मैं अल्टरनेटिव डेज का बनाता हूँ उसका मैं, और आपको पूरा कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बना के चीज भेजता हूँ. तो कल से हम प्रॉपर करेंगे इसको. ठीक है सर. 12 शार्प. हाँ, 12 शार्प टुमारो. ओके. बुरा मत मानो सर. मतलब आई एम ट्राइंग टू मेक माई भाई, सेल्फ बिकॉज एक साल से कुछ नहीं किया हूँ और मेरे को बहुत आलसी भी पड़ रहा हूँ. मतलब आई एम बिकमिंग लेजी एंड आई सर आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ वेरी स्ट्रांग एंड आई हैव टू कम आउट ऑफ इट. yes, I understand. So Because mind or see if you give me little more if you so रूल का एक रूल रखने से क्या होता है ना I'll become serious. yes, definitely. हाँ. तो This is what इसीलिए. I'm expecting. Yeah, this is what I'm राइट looking at. सर. थैंक यू सो मच. नमस्ते. Okay, bye. I'll sir because I have to go and get my daughter also right now. Yes, I understand. That is why I have just recap. I'm just Thank you so much. doing it. Bye. Nice speaking to you sir. Namaste.